ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ 2/5/2025 ಈಗಾಗಲೇ ಖವಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಖವಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ KGF ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ, ದರ್ಗಾ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಹಜರತ್ ಸೈಯದನ ಬಾಬಾ ಹೈದರ್ ಸಫ್ದರ್ ಔಲಿಯಾ ದರ್ಗಾ ಏನಿದೆ KGF ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ದರ್ಗಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9:30 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಏನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಕಾಯ್ದೆ, ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದರ್ಗಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತದ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ 6:15 ದರ್ಗಾದಲ್ಲೇ ಮೊಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರೋದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖವಾಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 2 ಮಾತನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हजरत और ब्रदरान इस्लाम, आप तमाम को ये इत्तला दी गई है और फिर दी जा रही है कि कल बरोज़े 2 मई बाद नमाज मगरिब हजरत हैदर सफदर बाबा दरगाह शरीफ आज का जो रास्ता है, उस रास्ते से होते हुए तमाम ब्रदरान इस्लाम को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये इत्तला दी जाती है कि आप एक अपना वक्त, कीमती वक्त निकालकर 10-15 मिनट के लिए आप तमाम बिला नाखा जमा हो जाएं और इस सिलसिले में किया जा रहा है कि जो 2025 में जो मरकजी सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल एक्ट में तरमीम की है, उस तरमीम के खिलाफ सारे हिंदुस्तान के मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं और हम उनसे अलग नहीं है। लिहाजा चंद वजूहात की वजह से देर से ही सही लेकिन दुरुस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस बिल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इसमें हर मुसलमान का शिरकत होना लाजमी ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। अगर वाकई हम इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कौम जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत भी देना चाहिए। इस बिल में, वक्फ बोर्ड बिल में जो मरकजी सरकार कह रही है, ये सफेद झूठ कह रही है कि इस बिल से गरीब मुसलमान का भला होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे तरमीमात किए हैं जिसका पार्लियामेंट में तक बहस व मुबाहिसा नहीं हुआ। ये वही बातें कर रहे हैं जो मुसलमानों को गफलत में लाई जा सकती है।
इन्होंने दो औरतों का इसमें जो ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने दो औरतों की गुंजाइश रखी है वक्फ काउंसिल में। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले ही से वक्फ जो बिल है हमारे पास उसमें औरतों का शामिल होना और दाखला ये रखा गया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ दो औरतें कहकर औरतों का सीमित किया गया और ये भी नहीं कहा गया है कि क्या ये सिर्फ मुसलमान औरतों को लेंगे या दूसरी औरतों को लेंगे। और वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड, जैसा कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि वक्फ बिल में कोई हिंदू नहीं है, अपोजिशन झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन एक बात छुपा कर बोल रहे हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड अलग चीज है और वक्फ काउंसिल अलग चीज है। वक्फ काउंसिल एक आईनी इदारा है जिसमें इन्होंने 20 पर 2 मेंबर यानी 22 मेंबर का इदारा बनाया है, 22 मेंबर की तरमीम की है और इन 22 मेंबर में 12 हिंदुओं को रखा गया है। ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ 8 मुसलमानों का वक्फ काउंसिल में दाखिला दिया गया है। हर हमेशा जब भी वक्फ काउंसिल से अगर ये बिल पास हो गई तो जब भी कोई ये आइंदा तरमीम करेंगे या कोई कानून वक्फ बोर्ड के लिए बनाया जाएगा, मुसलमानों के लिए बनाया जाएगा, तो कोरम हर हमेशा उन्हीं के फेवर में रहेगा, यानी हिंदुओं के फेवर में रहेगा। और दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं और मुखालिफत इस बुनियाद पे की जा रही है कि हर कौम के अंदर अपना एक वक्फ बोर्ड के इदारे की तरह हर बोर्ड है। हिंदू शीरीन बोर्ड है, सिखों का एक बोर्ड है, हर देवल का एक बोर्ड है। तो इन मंदिरों में, इन ट्रस्टों में हमें पूछना चाहिए कि अगर हिंदुओं को वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में लाया जा रहा है तो क्या मुसलमानों को भी उन तमाम बोर्ड्स में लिया जाएगा? जब उन्हें नहीं लिया जा रहा है तो एक गैर आईनी फेल है, ये एक गैर आईनी तरमीम है जिसकी मुखालिफत करना हर मुसलमान का फर्ज है और हिंदुस्तान का हर मुसलमान इसकी मुखालिफत में है। और ये लोग गुमराह कर रहे हैं चंद गिने चुने बिके हुए मुसलमानों को अपने साथ लेकर, जिनको वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, वक्फ बोर्ड में आज तक जिनका कोई रोल नहीं है, ऐसे चंद लोगों को जो सिक्कों की बुनियाद पर बिक जाते हैं अपने साथ लेकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, जबकि कोई मुसलमान, जहां तक मुझे इल्म है, जहां तक मैं पढ़ता हूं अखबार और टेलीविजन पे देखता हूं, कोई मुसलमान फर्द वाहिद भी इस बिल के ताइद में नहीं है। अगर एक आधा मुसलमान जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ थे, हमने इनसे सलाह मशवरा करके इस बिल में तरमीम की है, ये भी सफेद झूठ है, क्योंकि उन मुसलमानों ने भी इस बिल की मुखालिफत की है और जिन तरमीमात की तायीद की थी, जिन तरमीमात को वक्फ बोर्ड में लाया जाना चाहिए था, जिसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की किसी भी बात को इन्होंने अप्रूव नहीं किया है। ये एक डिक्टेटर की तरह, एक आमिर की तरह अपने तौर पर इन्होंने एक कानून बनाकर तमाम मुसलमान कौम पर थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि वक्फ इदारा ये एक मजहबी इदारा है और मजहबी इदारा होने की बुनियाद पर इनका कोई हक नहीं बनता कि इसमें किसी गैर मुसलमान को ठोसा जाए या मेंबर बनाया जाए। लिहाजा मैं तमाम मुसलमानाने शहर मुलबागल को पुरखुलूस इल्तिमास करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर इस प्रोटेस्ट को कामयाब बनाएं और ये बताएं कि हम इस बिल के सख्त खिलाफ हैं। अस्सलाम वालेकुम।